Hello everyone, this is Pratibha from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurgaon. I am here for presenting a lecture about combined footing design. This topic comes under the subject design of concrete structure 2. As we already studied about design of concrete structure 1 in previous semesters, now we have to study about design of concrete structure 2 in 6 semesters especially. So before I will start my introduction part, the topic is combined footing. So first of all, I will start with footing. What is footing? And what is combined footing? Footing is a structure which is constructed for carrying the load which is coming from the superstructure, and it is constructed under the need of the surface, and it is constructed basically for carrying the load from walls from the superstructure that is constructed over the surface. And what is combined footing? Combined footing especially we construct over columns. कॉलम क्या होता है ये हमें ऑलरेडी पता है. कॉलम स्पर्स ये हमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर डिजाइन में. कॉलम्स के लिए जो हम फाउंडेशन को देते हैं उसे हम फुटिंग बोलते हैं. अगर दो कॉलम्स की हम बात करते हैं पर्टिकुलर, तो दो कॉलम की को इंडिविजुअल फुटिंग की जगह हम एक कंबाइंड फुटिंग अगर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज कंबाइंड फुटिंग फॉर टू पर्टिकुलर कॉलम्स. But it will construct at a particular case. Where it will constructed? The first question is this: when two columns are close together in such a way that they are very close to each other, then we will use combined footing. This is one point. And second one is when the bearing capacity of soil is low and most probably the individual footing will overlap, then we will construct two, in spite of two footing, a one combined footing under two columns. That type of footing is known as combined footing. So it can be rectangular and trapezoidal, and sometimes, very rare, it will be in T-shape also. So basically we have to study about rectangular and trapezoidal footing, and these two are very much important. So this is combined footing. If I am talking about definition of combined footing, definition of combined footing are constructed for two or more columns when they are close to each other and their foundation overlap. If this condition happens, then we will use combined footing. A combined footing supports two and more columns in a row. वो column जो होते हैं, जो हम columns पे combined footing को लगा रहे हैं, वो row में arrange होते हैं. ये rectangular shape की भी हो सकती है और trapezoidal shape की भी हो सकती है. तो rectangular shape की combined footing हम कब देते हैं? When the loads are equal. दो column पर जो individual load आ रहे हैं, जो point load आ रहे हैं, वो equal amount के आ रहे हैं, then we will use rectangular footing. And the amount is different, then we will use trapezoidal footing. So this is combined footing. We can construct it reinforced with the help of reinforced concrete. मटेरियल की अगर हम बात करें तो reinforced concrete बनाते हैं. What is reinforced concrete? जिसमें हम स्टील और कंक्रीट का साथ में यूज करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हर जगह हम कंबाइंड फुटिंग को ही कंस्ट्रक्ट करते हैं. So this is about introduction part of combined footing. One more important point is if the bearing capacity is also low, then we will use reinforced
combined footing underneath of 2 columns. This is already I'm showing in this slide. Combined footing are provided only when it is absolutely necessarily, when 2 columns are close and the footing will overlap. Second point, the soil bearing capacity is comparatively low. So these are 2 basic points we have to consider before construction of the footing, whether we will construct combined footing, rectangular footing or combined footing. This is a figure of combined footing. Rectangular footing का जो हम elevation view देख रहे हैं कि their P1 and P2 are the 2 loads. P1 comes at 1 column C1 and P2 at C2 at LY2 and LY2. So both the columns are too close to each other. We will not construct individual footings here. We will construct combined footing under both the columns. So this is the elevation point. If we will draw plan, that will be different. We can also draw the plan view. Types of combined footing. बेसिकली जो डिजाइन हमें करनी होती है एग्जाम्स में, 6 सेमेस्टर में जो डिजाइन एग्जाम में पूछी जाती हैं, दीज आर ऑफ रेक्टेंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल ओनली. And T-shaped we can also study, but this is not generally asked by the examiner and examination point of view. So basically there are 3 types: rectangular combined footing, trapezoidal combined footing, and T-shaped in plan. T-shaped combined footing. So if we will talk about the principle, what the principle is, the principle I already wrote there. The geometrical proportion and shape are so fixed that हमें इस तरीके से geometrical proportion को रखना है और उसके shape को इस तरीके से डिजाइन करना है that centroid of the footing area coincide with the resultant of column loads. दोनों लोड का जो resultant है फुटिंग का सेंट्रॉइड उससे कोइंसाइड हो, जिससे कि जो प्रेशर है या जो लोड ऊपर से आ रहा है वो प्रॉपर्ली पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसको हम इजीली मैनेज कर पाए. सो दिस इज दीज पॉइंट्स आर अंडर द प्रिंसिपल, दिस लाइन which I wrote at the second point, this one. The geometrical proportion and the shape are so fixed that centroid of footing are coincide with the resultant of column load. This results in uniform pressure below the entire area of the footing. सबसे important होता है load का या pressure का uniformly distribute होना, so that we can manage the design aspects, design parameters. Third point, this one. Trapezoidal footing is provided when one column is much more than the other. As the result, both the proportion of footing beyond the face of the column will be restricted. Trapezoidal footing को हमें तब बनाना होता है या तो दोनों कॉलम पे सेम लोड नहीं है और कॉलम के साइज भी डिफरेंट है. Then we can use trapezoidal footing under these types of column. The shape will be different. That is a rectangular. That will be in trapezoidal shape. So these points you have to consider. Fourth point is rectangular footing is provided when one of the projection of footing is restricted or width of the footing is restricted. इसमें हमें जो width होती है वो, क्योंकि हम कहीं पे भी अगर columns के लिए combined footing दे रहे हैं तो already वहाँ की width पहले से decide होती है. तो width अगर restricted है तो उसी width के अंदर we have to construct combined footing, whether we are forming rectangular and trapezoidal in nature, in shape. So this is a basic introduction about combined footing. So अभी हमें इतना समझ में आ गया है कि combined footing क्या होती है. combined footing का मतलब है कि 2 कॉलम के लिए हमें एक footing बनानी है जो कॉलम्स काफी नजदीक होते हैं या पास में होते हैं, in spite of making 2. अगर हम डिजाइन स्टेप्स की बात पे आते हैं, डिजाइन स्टेप्स ऑफ फुटिंग. आप किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हो तो उसके लिए कुछ डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं. इंडिया में हम IS 456 2000 का यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड्स पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें कंसीडर करते हुए किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना होता है.
प्लेन कंक्रीट का आप यूज कर रहे हैं या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का यूज कर रहे हो, आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन का यूज करना होता है। तो यहाँ पे जो डिजाइन पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे, दीज आर फॉलोइंग। सबसे पहले डिजाइन के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, लोकेट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉलम लोड ऑन द फुटिंग। हमें ये देखना होता है कि फुटिंग हम जो बनाएंगे उस पे लोड किस पॉइंट पर उसकी एप्लीकेशन है, वो लोड किस पॉइंट पर आएगा फ्रॉम द कॉलम। So first we have to consider this point. Locate the point of application of column load on the footing. ये हमें प्री डिजाइन करना है, सारा डॉक्यूमेंट वाला काम है। ऑलरेडी हमें प्लान में अपना मेंशन करके रखना है कि इस पॉइंट पे इतना लोड आ रहा है, ऐसा पॉइंट लोड। तो दिस इज दिस पॉइंट। सेकेंड इज proportion of the footing such that resulting in a load passes to the center of the footing. हमें इस तरीके से उसकी डिजाइन, उसकी विड्थ और लेंथ को, एरिया को मेंशन करना है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो फॉलो। लोड का जो सेंट्रॉइड है वो हमारा फुटिंग के एरिया के सेंट्रॉइड से कोइंसाइड होना चाहिए, तभी वो लोड उस पर्टिकुलर एरिया में आएगा और वो फुटिंग उसको प्रॉपर्ली कैरी कर पाएगी। तो वी हैव टू कैरी द सेकेंड पॉइंट ऑल्सो। थर्ड पॉइंट, compute the area of footing such that allowable soil pressure is not exceeded. हमें एरिया ऑफ फुटिंग इस तरीके से डिजाइन करनी है, विड्थ हमें ऑलरेडी सपोज अगर दे रखी है, लेंथ हमें इस तरीके से देखनी है कि लोड भी आपका कैरी हो जाए और वहां की सॉइल की का जो प्रेशर है, क्योंकि जहां आप फुटिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वहां पे जो सबग्रेड, जो नीचे जो मिट्टी है, जो सॉइल अवेलेबल है, वो प्रेशर ऊपर एक्सर्ट करेगी, वो प्रेशर एनी हाउ एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट वी हैव टू consider this. Sometimes examination में ये points पूछ लिए जाते हैं कि write the design steps, so you have to learn all these points. Fourth one is your calculate the shear force and bending moment at the silent point and hence draw SFD BMD. This is a very important point. As I already told you, आप किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम शेयर फोर्स किस पॉइंट पे होगा और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, इन पॉइंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आइडेंटिफाई करना होता है, आप क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये आइडेंटिफाई कैसे होता है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम लोड लग रहा है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मोमेंट रोटेशन जनरेट हो रहा है, वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स के लिए हम क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए अगर रेनफोर्समेंट डिटेलिंग निकालेंगे तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इससे ज्यादा शेयरिंग और मोमेंट बाकी पॉइंट्स पे नहीं होगा और आप अपनी डिटेल को उसके अकॉर्डिंगली एस्टिमेट कर सकते हैं। हमेशा किसी भी डिजाइन में मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, फिक्स द डेप्थ ऑफ द फुटिंग फ्रॉम द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को देखते हुए एक डेप्थ को एज्यूम करते हो कि फुटिंग की डेप्थ हम सपोज इतना रखते हैं, आगे हम देखते हैं कि इस बेंडिंग मोमेंट में इतनी डेप्थ देने के साथ ये फुटिंग हमारी प्रॉपर्ली डिजाइन हो जाएगी और इस पर्टिकुलर लोड को कैरी कर लेगी। इसके लिए मैं आपको एक डिजाइन एग्जांपल बताऊंगी अभी, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो ये बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट में आपको बता रही हूँ। अभी न्यूमेरिकल देख के ये चीज प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम डेप्थ डिसाइड करते हैं, डेप्थ डिसाइड करने के बाद उसको चेक करते हैं, देन check the footing for longitudinal shear and hence design the longitudinal steel. longitudinal steel डिजाइन करने का मतलब है आपने डिजाइन किया, डेप्थ आपने निकाला, आपको पता चल गया यहाँ पे इतना बेंडिंग मोमेंट है, तो एरिया ऑफ स्टील इस पॉइंट, इस क्रिटिकल पोर्शन के लिए आपका सपोज x निकल के आ रहा है, तो आप इससे ज्यादा एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे। उस एरिया ऑफ स्टील के लिए आप किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्टील या फिर ट्रांसवर्स स्टील। तो आपका वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स स्टील का जो डायमेंशन है वो अल्टीमेटली निकल के आ जाता है। So these are that points. I will clear rest of the portion in the example because क्योंकि ये numerical based है,
इसके बाद आप क्या करते हैं, इसमें डेवलपमेंट लेंथ निकाल देते हैं। डेवलपमेंट लेंथ, जो भी डेवलपमेंट लेंथ उसमें डेवलप हो रही है, मींस आई ऑलरेडी डिस्कस इट, development length we can find out with the help of some given formula in IS 456 2000, and ultimately we will check the economical and डायग्राम के ये पूरी तरीके से आपने इकोनॉमिकली इसको डिजाइन किया है। इकोनॉमिकल डिजाइन करने का मतलब होता है जहां पर जितनी रेनफोर्समेंट की जरूरत है उतना ही रेनफोर्समेंट डाला है, ज्यादा रेनफोर्समेंट हमने उसमें नहीं डाला है। तो दीज आर द सम डिजाइन स्टेप्स। Now I will go on example. This is example. This is already a theoretical figure which I already discussed. Combined trapezoidal footing, rectangle and strap. जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ट्रिपेजॉइडल फुटिंग है, मतलब एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। हमने इसमें ये इस शेप में ये यहाँ की विड्थ ये अलग है, ये विड्थ अलग है, ट्रिपेजॉइडल कंबाइंड एक फुटिंग दे दी है। आप इसको देख सकते हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम इनको एक बीम से कनेक्ट किया है और ये फुटिंग दे रखी है। ये आपका रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग का एग्जांपल हो सकता है। दिस इज अ एग्जांपल, डिजाइन एग्जांपल व्हिच इज very important. I will discuss it. Just read it out. Design a combined footing for two columns 500 into 500 mm each. Same dimension दिया है, 5 meter apart, carrying a load of 1600 kilonewton. Available weight restriction is 2.4 meter. The safe bearing capacity is 200 kilonewton per meter square. Use M25 and Fe415 steel. दिस इज एग्जाम्पल। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से रीड कर लें। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि M25 ग्रेड क्या होता है, Fe415 क्या होता है, क्योंकि ये हम डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर 1 में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में। तो ये ऑलरेडी हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये आपको पता है। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। कॉलम साइज हमारा दे रखा है 500 इंटू 500। दो कॉलम है जो इस साइज की है, सेम। ऊपर से दोनों कॉलम्स पे सेम ही लोड आ रहा है। अगर सेम लोड आ रहा है, हम रेक्टेंगुलर फुटिंग को यहाँ पे डिजाइन करेंगे। ये हमने डिसाइड किया, उसमें मेंशन था नहीं था, रेक्टेंगुलर नहीं था, लेकिन कंबाइंड फुटिंग था। तो लोड क्या हो गया, P1 एंड P2 इज इक्वल टू 1600, L इज इक्वल टू 5 एंड Q0 से हमने उसकी वेरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है आपका, वो हम एरिया ऑफ फुटिंग निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हम निकालते हैं, आप ये मैं एरो चला रही हूँ, आप देखते जाइए। टोटल कॉलम लोड, आप टोटल कॉलम लोड, एक कॉलम पे 1600 आ रहा है, तो दोनों कॉलम पे क्या हो गया आपका 2 इंटू 1600, मतलब 3200 किलो न्यूटन। इसके बाद ये मैं निकाला मैंने सेल वेट ऑफ फुटिंग एज 10% ऑफ टोटल वेट। टोटल वेट आपका 3200 किलो न्यूटन था, और सेल वेट को हम 10% एज्यूम करते हैं एज पर IS। ये आपको पॉइंट याद रखना, स्टैंडर्ड है। टोटल वेट का हम 10% निकालते हैं। तो हमने 3200 का 10% निकाला तो 320 किलो न्यूटन आ गया। तो हम टोटल को इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल लोड आपका कितना हो गया, 3200 प्लस 320, 3520 किलो न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि हमें पहले टोटल लोड निकालना है, उसका फिर सेल वेट को 10% निकाल के उसमें ऐड करना है। इसके बाद आप IS 456 2000 को साथ रखे रहिए, उसकी भी हेल्प मिलती है। इसके बाद हमें निकालना है, ये जो मैं एरो चला रही हूँ, एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड। वी विल यूज दिस फॉर्मूला W/Q0। दिस इज आल्सो यू हैव टू लर्न। व्हाट इज W वो लोड है जो हमने अभी जस्ट निकाला है। टोटल लोड जो कॉलम का आ रहा है 3520, एंड Q0 इज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सो इसको आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया आपका 17.6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फुटिंग। ऑलरेडी इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में विड्थ दे रखी थी आपको 2.4। देन आप लेंथ निकाल, आपने ये डिसाइड कर लिया है रेक्टेंगुलर फुटिंग है और आपको विड्थ दे रखी है, तो आप लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास एरिया है। एरिया में आप विड्थ से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी, क्योंकि आपको विड्थ ऑलरेडी दी हुई है। तो 7.33 आपकी लेंथ आ गई है, ये हमें निकाला।
इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने एज्यूम कर लिया 7.5 मीटर। एडॉप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलती से कट किया है, एडॉप्ट तो लिखा हुआ है 7.5 मीटर। अब मैंने इसके लिए एक फिगर ड्रॉ किया है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर फुटिंग, दीज आर 2 कॉलम्स। इनकी अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, दीज आर ऑफ, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है 5 मीटर अपार्ट, मतलब सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आपकी 5 दे रखी है, C1 C2 दे 2 कॉलम्स, लेंथ आपकी 2.4 मीटर दी हुई है, 7.5 हमने लेंथ, सॉरी विड्थ 2.4 मीटर दे रखी है, 7.5 मीटर हमने लेंथ को निकाल लिया है। ऊपर से 1.2 हो जाएगा सेंटर तक का, 2.4/2, ठीक है। ये सारी डिस्टेंसेस हमने यहाँ पे निकाल लिए, आप देख लीजिए कैसे निकलेगी। ये जो कॉलम है ये 500 mm डायमीटर का है, 500 mm मतलब 0.5 मीटर, मतलब 0.25, ये 0.25 मैंने हाफ लिख दिया, राइट। ये मैंने सारी डिस्टेंस लिख दी है, यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक है 0.25, इस कॉर्नर से इसके सेंटर तक 1.25 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 1 है आपका, ठीक है। तो 1 कैसे है, ये जो 1 है 7.5 माइनस 5/2, तो यहां से ये आपकी डिस्टेंस 1 आ गई है, यहां से डिस्टेंस 1 हो गई, तो सेंटर से 1.25। आप थोड़ी सी कोशिश करिए, सारी डिस्टेंस को हमने लेंथ और विड्थ की डिस्टेंस की हेल्प से निकाला है। आप एक बार दोबारा देखिए, 7.5 माइनस 5/2, तो यहां से यहां तक 1 हो गया, यहां से यहां तक 1 हो गया, और ये सिर्फ सेंटर से ये स्क्वायर का जो ये कॉलम का दे रखा है आपका 0.25, तो 1.25 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। तो ये मैंने सारी डिस्टेंसेस को निकाल लिया है। इसके बाद मैं देखती हूँ अपवर्ड सॉइल प्रेशर निकालते हैं। अपवर्ड सॉइल प्रेशर मतलब आप जहाँ पे इस फुटिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वहां का सॉइल क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो हम निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी हमें ये कोड से कुछ कोड में आपको मिल जाएंगे, कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे डिजाइन में। अपवर्ड सॉइल प्रेशर होता है टोटल लोड बाई पर यूनिट एरिया, हम निकालते हैं टोटल लोड अपॉन एरिया ऑफ द फुटिंग। तो टोटल लोड आपका क्या था, 1601 कॉलम पे आ रहा था, डबल कर दिया उसको, और एरिया ऑफ फुटिंग है 2.4 इंटू 7.5, तो आपका जो अपवर्ड सॉइल प्रेशर आ गया वो आ गया 177.8, मतलब जो सॉइल नीचे से प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो 177.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करेगी। फैक्टर्ड कर देते हैं हम, कभी भी किसी चीज को उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो हमने इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर सॉइल प्रेशर निकाला, तो आपका 266.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। इसके बाद हम इसके डिजाइन पे जाते हैं। अगर हम डिजाइन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कर रहे हैं, आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो आपको विड्थ 2.4 दे रखी है, आप इसके लिए आप अपवर्ड सॉइल प्रेशर पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, तो अपवर्ड सॉइल प्रेशर क्या है 266.7 इंटू विड्थ कितनी थी 2.4, जब ये आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 640 आ जाएगा। यूनिट ध्यान रखिए, यूनिट क्या आई आपकी 640 किलो न्यूटन पर मीटर। ये अपवर्ड सॉइल प्रेशर आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। ये हमने देखा था डिजाइन स्टेप्स में भी कि हमें मैक्सिमम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। इसके लिए हमने एक डायग्राम फॉर्म कर लिया समझने के लिए, लाइन डायग्राम जिसे हम बोल सकते हैं, उसी फुटिंग के लिए। फुटिंग क्या है, C1 सॉरी कॉलम C1 था, C2 था, इस पे 1600 लोड आ रहा था, 1600 इस पे आ रहा था, दोनों 5 मीटर की डिस्टेंस पे थे, फैक्टर्ड करके लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉलम के सेंटर तक की डिस्टेंस जो मैंने उस फिगर में यहाँ पे 1.5 निकाली थी वो मैंने यहाँ लिख दी, ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये 0.25 का है और ये यहाँ से यहाँ तक 1 का है, तो ये मैंने 1.25 यहाँ लिख दिया। अपवर्ड सॉइल प्रेशर जो मैंने अभी फॉर्मूले से निकाला वो 640 किलो न्यूटन पर मीटर मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ से भी ये 1.25 है। तो एक लाइन डायग्राम मैंने समझने के लिए फॉर्म कर लिया कि लोड किस तरीके से आ रहा होगा। तो अगर मैं इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में 6 सेमेस्टर में हैं, कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए डायग्राम कैसा होता है। सपोर्ट्स पे शेयर फोर्स यहाँ पे 0 है होता है, ये धीरे धीरे शेयरिंग बढ़ती जा रही है, इस पॉइंट पे शेयरिंग मैक्सिमम हो गई है, फिर यहाँ पे कम होती गई है, फिर यहाँ पे नेगेटिव शेयरिंग हो रही है, इस तरीके से इसका ये डायग्राम फॉर्म हो जाता है।
सेम बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर हम देखते हैं तो बेंडिंग मोमेंट आप देखिए सपोर्ट्स पे यहाँ पे 0 है, ये धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता है, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में सैगिंग हो गई, आपने पढ़ा है सैगिंग होती है इसमें, और फिर सपोर्ट्स पे यहाँ पे 0 होता है। तो दिस इज अ डायग्राम विच यू ऑलरेडी नो हाउ टू ड्रॉ इट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड फ्लो डायग्राम। इसके बाद मैं कैलकुलेशन और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स करूंगी। शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप शेयर फोर्स निकालें पहले, शेयर फोर्स एट C1 पे शेयर फोर्स निकालें, इस पे शेयर फोर्स लेफ्ट में निकालें तो लेफ्ट के लिए जो फोर्स है वो आप ले लेंगे। इस डायग्राम को साथ ही देखते जाएं। इसको ये जो 1600 800 1600 800 ये मैंने बाद में लिखा है, निकालने यहाँ पे निकालने के बाद आप बाद ही में लिखिएगा। इस डायग्राम को देखते हुए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालें। C1 के लेफ्ट में C1 के आपने लेफ्ट में देखा तो नीचे से सॉइल प्रेशर 640 लग रहा है, इनटू क्योंकि ये यूडीएल की तरह है, इनटू आपने डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया तो -800 आ गया। अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड लग रहा है तो ये माइनस, इसलिए हमने लिया। ये देखिए ये C1 के लेफ्ट में इस पोर्शन में शेयरिंग 1.25 और नीचे से 640 और तो कुछ नहीं लग रहा है, तो ये आपका शेयर फोर्स हो गया जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेंटर। शेयर फोर्स एट C1 जस्ट राइट ऑफ द सेंटर, यहाँ देखिए राइट ऑफ द सेंटर पे आइए, C1 के राइट पोर्शन ये है, तो यहाँ पे आप ये भी कंसीडर करोगे और जो सॉइल प्रेशर लग रहा है वो भी। अब ये यूडीएल फॉर्म में लग रहा है तो इसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा, तो यही मैंने किया है कि जो पॉइंट लोड को कंसीडर किया और नीचे से जो लग रहा था इसे कंसीडर कर लिया, तो 1600 आ गया। इन दोनों को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सिमिलरली मैंने शेयर फोर्स C2 के लिए निकाला है। आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा टाइम पेशेंस रखिए तो आपको समझ में आएगा। C2 के लिए यहाँ पे सिर्फ सॉइल प्रेशर लग रहा है 640 इंटू डिस्टेंस, यहाँ के लिए ये और सॉइल प्रेशर दोनों कंसीडर होंगे। तो मैंने इसके लिए जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेंटर एंड जस्ट राइट ऑफ द सेंटर ऑलरेडी निकाला और उसको मैंने इस डायग्राम में यहाँ पे ये और ये ड्रॉ कर दिया। ये ड्रॉ हो गया है। इसके बाद सिमिलरली मैं C2 के लिए कर दिया जस्ट राइट ऑफ द सेंटर जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेंटर। इसके बाद मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगी, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आप बेंडिंग मोमेंट C1 एंड C2 के लिए कंबाइन निकाल रखा है मैंने, जैसे 640 इंटू 1.5 इंटू 1.5/2। आप देखिए इसमें ये C1 पे 640 इंटू 1.25, आपने लोड यूडीएल है तो इतना, इसके भी हाफ पे लग रहा होगा ये C1 के लिए। C1 C2 के लिए भी सेम, अगर हम यहाँ का इस पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो ये वाला ही फोर्स लेंगे ना आप, 640 जो अपवर्ड लग रहा है इंटू 1.25 इंटू 1.25/2, क्योंकि ये यूडीएल है तो ये 500 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। बेंडिंग मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है किलो न्यूटन इंटू मीटर। मिड स्पैन पे अगर आप निकालेंगे तो ये इस तरीके से निकलेगा। मैंने पूरी कैलकुलेशन ये कर रखी है। मिड स्पैन पे आप देख लीजिए, ये है मिड स्पैन। यहाँ पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो यहाँ के लिए सारी चीजें कंसीडर होंगी। मिड स्पैन मतलब ये सेंटर, ठीक है, ये जो मैंने ये लाइन बना रखी है। तो आप इस लाइन के लिए देखें तो ये वाला लोड भी और ये जो सॉइल का प्रेशर 640 लग रहा है ये सारा मैंने कंसीडर किया हुआ, साथ में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये देखिए 640 नीचे से जो लग रहा है और 640 से जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 3.75, 2.5 प्लस, यहाँ आप देख लीजिए हाँ ये यहाँ सेंटर पे यहाँ तक की, तो ये आधी इस कॉलम से यहाँ सेंटर तक की कितनी है आपकी 2.5, 2.5 प्लस 1.25 तो 3.75। डिस्टेंस का एक बार किया फिर दोबारा करके बाई 2 क्योंकि यूडीएल है, माइनस 2400 जो 2 इंटू 1600 है आपका इंटू 2.5 सेंटर पे हम निकालते हैं। तो आप इसे थोड़ी शांति से समझिए, ये आ जाएगा समझ। तो ये डिस्टेंस हमने मिड स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया जो कि माइनस इतना है, इसलिए हमने फिगर में ड्रॉ कर दिया। इसके बाद पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट या जिसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर बोलते हैं, वहां हम मोमेंट निकालते हैं। तो हमने उसे माना सपोज mx है। बेंडिंग मोमेंट
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है, ये डायग्राम है, यहाँ इसने साइन चेंज किया, तो ये डिस्टेंस हमने x निकाल लिया, ये मैंने बाद में निकाल के यहाँ लिख दिया है, तो ये x, यहाँ पे हमने mx निकाला है। mx आप देख लीजिए 640 जो नीचे से सॉइल लग रहा है इंटू x/2 माइनस 2400 क्या है, यहाँ पे आप मोमेंट निकाल रहे हो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे सॉइल प्रेशर इंटू दिस डिस्टेंस अपॉन ऊपर से जो लग रहा है माइनस x माइनस 1.25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, ये आप सारे निकाल के रख लीजिए। इसके बाद जो स्टेप्स और उसे फिगर में ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद जो हम स्टेप निकालते हैं वो है डेप्थ ऑफ फुटिंग। मैंने सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स निकाला था, वो क्यों निकाला था, डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालने के लिए। तो मैक्सिमम जो मोमेंट आया था वो क्या था, 1500। इसकी यूनिट चेंज कर दी है, किलो न्यूटन को मैंने न्यूटन mm में चेंज कर दिया, इसके 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। डेप्थ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, d इक्वल इज इक्वल टू अंडर रूट mu अपॉन ru इंटू b। M25 Fe415 के लिए ru का फॉर्मूला एज पर कोड आपके सामने मैंने लिख रखा है, आप इसका यूज कर सकते हो। इसको सॉल्व FC के मतलब जो आपका 25 दे रखा है एंड Fe415 आपका Fy होता है। तो यहाँ से ru की वैल्यू 3.45 आ गई है, इसे मैंने इसमें लिख दिया, और d रिक्वायर्ड मेरे पास 4.425 mm आ गया। d रिक्वायर्ड हम इतना ही एज्यूम कर सकते हैं, या इससे थोड़ा सा बढ़ा के आप एज्यूम कर लीजिए। d इफेक्टिव है ये। अब हम जो रेनफोर्समेंट निकालते हैं, ये लास्ट स्टेप है। आप रेनफोर्समेंट देखिए निकालना, आपने मोमेंट क्या लिया है, 1500। नेगेटिव मोमेंट है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो बस मैक्सिमम लेके चलना है हमें। तो हमने ये मैक्सिमम मोमेंट लिया, ये हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला आप ये लिखा हुआ है, आप इसको पहले नोट करिए जो मैं एरो चला रही हूँ, mu = 0.87 Fy, ये Fy है, AST d √1 माइनस Fy AST अपॉन FC के b इंटू d ब्रैकेट बंद। तो जो मोमेंट आपका आया वो मैंने ये लिख दिया 0.87 0.87। Fy जो स्टील की स्ट्रेंथ होती है 415 ग्रेड दे रखा है क्वेश्चन में, वो लिख दिया। AST आपको निकालना है। d एक अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे 425 आया है। आप इसको 600 700, मैंने इसको बहुत ज्यादा एज्यूम करके ही डिजाइन किया है, 1040 लेके मैंने किया है। आप इसको और कम करके कर सकते हैं, 800 तक लेके आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1040 मैंने एज्यूम कर लिया था, और EST हमें निकालना है, अपॉन ये सारे पैरामीटर मैंने लिख दिए। तो यहाँ से EST रिक्वायर्ड की वैल्यू सॉल्व करके आ जाती है। आप EST रिक्वायर्ड ही निकालते हैं हर जगह। तो EST प्रोवाइडेड आप कैसे निकालेंगे, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप 16 mm के बार देंगे, एक बार का एरिया क्या होगा, और आपको नंबर ऑफ बार कितने देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं 16 mm के बार यूज कर रही हूँ। 16 mm के एक बार का आपने एरिया निकाला, 5/4 इंटू 16 का स्क्वायर। अब कितने की जरूरत है वो आप डिसाइड करिए कि जो रिक्वायर्ड एरिया उससे ज्यादा आए हमेशा निकाल के। सिमिलरली आप mu आपने जो मैक्सिमम था उसके लिए निकाला, अब पॉजिटिव मोमेंट के लिए भी आप AST रिक्वायर्ड निकालेंगे। तो mu क्या है, 500। सेम आपने फॉर्मूला लगाया, AST आपका 1338 आया है, यहाँ भी हमने 10-16 mm के बार्स का यूज किया है। So this is a design example about rectangular footing design. So I am just now finishing this particular topic. Thank you very much. If you have any doubt, then you can comment me and send me the pictures, and whenever you will feel free, you can contact me. Thank you very much.